Is my Chrome screen visible to you guys? Okay, Chrome visible. VS Code visible. Okay, fine. So firstly, we will see how to create your React application. Till now, we were making use of CDNs and all, correct? हम अपने HTML वाले पेज पे we were using CDNs through where we were using the React library. Yes or no? But now we will be learning White also. But for now, let's see how to build an application using CRA. Okay. So basically, I've created a new folder RCT. इसके अंदर we will build an application. So first thing is आपको one sec. Firstly, आपके PC में you should be having Node and npm. Both need to be installed. Okay. Afterwards, what you can do is there is a command which is npx create React app. Okay. Afterwards, you will give the name also. Suppose my React app name is demo. As soon as I click enter, the one application would be getting created. So it would be fetching all the node modules and all from the internet. So it might take a lot of time depending on the internet speed and all. Okay. So one application would be created like this, and it will be containing your source file, your package.json, and your node modules also. Fine. And here, if you see in the package.json, let it be created. We'll wait. Okay. So basically, our React application is being created now. So in this application, you can see we have node modules. You can expand and see what are theirs. And there is a source file. Source file may all the, you can say, your HTML, your JS and all files will be there. Okay. And you are having this package.json. What do we have in package.json? Anyone? What are all these things? Dependencies and all. Previously, when you were using CDN links, you were manually using the CDN's links to getting those libraries, React demos and all. Correct. But in the correct React application,
यू आर डायरेक्टली गेटिंग इट फ्रॉम द वेब. ओके, डाउनलोड कर लिया हमने. नॉन मॉड्यूल्स में ऑल दी डिपेंडेंसीज वुड बी देयर. इफ यू सी केयरफुली यू विल बी हैविंग रिएक्ट, बेबल एंड ऑल. QR, see, React is there, React DOM is there, correct? So it is the source file you can say कि आपके प्रोग्राम में आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है. दैट इज द कम्युनिकेशन पॉइंट है. वो चीज़ें वो एक्सट्रैक्ट करके आपको ला देगा. यू कैन से इज अ मिडल मैन. करेक्ट संतोष. ओके, फाइन. Here is SRC and here is package.json and here are script also. These are some scripts. You can add your script also. So these are the basic scripts. Like start करने के लिए we have npm run start. Build करने के लिए suppose you want the application to be in a file तो आप build कर सकते हो. And बाकी all other scripts that you will learn in the future. Okay, so start करने के लिए we have npm run start कर सकते हो या फिर खाली start भी डाल सकते हो. npm start. Okay, we have to go into the application first. Cd demo npm start. Okay, here we can say that our application has been started. So if you are making React application using CRA, it will take some time to load क्योंकि it is having many packages, or you can say many packages, you can say, correct, in the non modules which you are not using at all. Correct. इनमें से शायद 10 से 20 हम यूज कर रहे होंगे. सो इसका शॉर्ट वर्जन के लिए यू विल लर्न वाइट इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, उससे भी आप एप्लीकेशन बना पाओगे बट दोज एप्लीकेशन वुड बी वेरी लाइट. फाइन. सो आपका ये स्टार्ट हो गया एप्लीकेशन एंड इट इज app.js. फाइन. सो हेयर इट इज app.js जहाँ से वो एप्लीकेशन आपका रन हो रहा है. यहाँ पे आपने अगर देखा है तो वी आर हैविंग दिस फंक्शन ऐप जिसको हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं. करेक्ट. सो एक्सपोर्ट कर रहे हैं मीन्स वी आर यूजिंग इट समवेयर. वेयर वी आर यूजिंग, वी आर यूजिंग इट इन आर index.js. ओके, यहाँ पे आपका रूट एलिमेंट इन्होंने पहले कैच करके रखा है और ऐप कंपोनेंट को डायरेक्टली कॉल किया. सिंपल. ओके, ठीक है. अभी ऐप के अंदर हम लेट्स रिमूव ऑल दीज थिंग्स एज ऑफ नाउ. Okay, here is our application which is having nothing as of now. What is the use of strict mode and all? Okay, we will see क्या करते हैं उससे. When we use effect तब देखेंगे. Okay, till now any issues? ये सब चीज़ें आपने पहले भी करी है. We were just not using React application. We were directly using CDN links. Correct. Now जैसे आपने ऐप को एक्सपोर्ट किया है वैसे you can export other components also that you can use here. तो सपोज हम अलग एक कंपोनेंट बना लेते हैं यहाँ पे. से navbar डॉट jsx. सो दिस इज navbar डॉट jsx. इसके अंदर अभी कुछ नहीं है. इट इज जस्ट सेइंग navbar और इसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से. करेक्ट. तो यहाँ से एक्सपोर्ट किया और अगर हमें उसको ऐप में यूज करना है तो वी हैव टू इम्पोर्ट इट है. ओके, इम्पोर्ट navbar फ्रॉम /navbar बिकॉज वी आर इन द करंट फोल्डर ओनली. सो अगर इसकी जगह हमें अभी navbar को कॉल करना है तो वी कैन हैव इट लाइक दिस. Okay, it is saying we are not having any navbar.jsx. Why it is saying that? JSX not needed. No, because the name is not needed matching. See, it is capital, but when we are importing, we are using capital M. But there is a, you can say, rule here कि आप अगर कोई भी component का नाम दे रहे हो, it should start from capital letter. So copy path
not copy path, rename navbar.jsx. Fine. Still having issues. Import navbar from navbar. Fine. एक्सटेंशन से तो इशू नहीं होना चाहिए यार. एक्सटेंशन डाल देते हैं, ठीक है एक बार. ओके करेक्ट, इट इज़ अ नॉट डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, सो हमें उसको ब्रैकेट में डालना पड़ेगा. ओके व्हाट इज सेइंग नाउ, लेट्स रिफ्रेश दिस. ओके, हमने ये सीखा था पहले भी, करेक्ट. अगर हम कोई चीज़ को डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहे तो वी हैव टू इम्पोर्ट इट विद द नेमिंग कन्वेंशन है. फाइन. अगर उसको आप एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करते हो यहाँ से, तो यहाँ पे हम डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे, फंक्शन डायरेक्टली बनाना पड़ेगा. ठीक है, एक्सपोर्ट नीचे करते हैं. एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नैवबार. तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्टली अभी ले पाएंगे. फाइन वर्क्स. यार वाई एक्सटेंशन डजेंट मैटर, क्योंकि आपका रिएक्ट एप्लीकेशन इज स्मार्ट इनफ टू गेट द कंपोनेंट. ओके, इट विल नॉट चेक द एक्सटेंशन. आप चाहे इसको भी रीनेम कर सकते हो, ऐप डॉट जे एस से ऐप डॉट जे एस एक्स. इट वुड वर्क द सेम वे. सी. ओके ठीक है फाइन. जैसे आपका नैव बार है, सिमिलरली यू कैन हैव मल्टीपल कंपोनेंट्स है. से व्हाट वी कैन मेक, हेडर head dot jsx. rfc, it is returning this head. So इसको भी यूज करने के लिए we have to use here import statement. Import head from this. So it is also a naming convention. तो यहाँ पे डालना पड़ेगा. And here only you can use head directly. Works. Both of them are here. Any issues till now in the basics? No? Nothing clear? Okay. ये तो हो गया आपका क्रिएट रिएक्ट एप्लीकेशन. नेक्स्ट इज यूज इफेक्ट डायरेक्टली यूज करें अभी. ओके ठीक है, एक कंडीशनल रेंडरिंग देख लेते हैं. तो सपोज आपको एक बारी में एक ही कंपोनेंट चाहिए आपके पेज पे. ओके, तो व्हाट इज द क्राइटेरिया है, कैसे हम एक ही कंपोनेंट एक बार में यूज कर सकते हैं. वी हैव टू यूज कंडीशंस, करेक्ट. एंड व्हाट डज दैट कंडीशन, करेक्ट. ठीक है, सपोज हम डायरेक्टली यूज करते हैं, ट्रू है अगर तो नेवर अदरवाइज हेड. ओके, हमने कोई स्टेट नहीं लिया अभी, डायरेक्टली ट्रू यूज कर रहे हैं, तो एवरी टाइम इट विल बी ट्रू, करेक्ट. सो ओनली नेवर वुड गेट लोडेड. फाइन. बट इफ यू वांट टू मेक इट डायनामिक, इफ यू वांट टू मेक इट डायनामिक तो आप क्या कर सकते हैं, यू हैव टू यूज द स्टेट ऑल्सो. तो यहाँ पर स्टेट का यूज करेंगे, कोई भी स्टेट ले लेते हैं. लेट आर फ्लैग, फ्लैग एंड सेट फ्लैग इक्वल टू यूज स्टेट का यूज करके ट्रू. ओके, इनिशियली हम ट्रू रख रहे हैं उसको. तो हम यूज स्टेट डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते अभी ऐसे, ऐसा ना, क्योंकि हमने इसको इंपोर्ट नहीं किया. वेर दिस यूज स्टेट इज कमिंग फ्रॉम रिएक्ट. सो हमें उसको रिएक्ट से पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा. इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, देन ओनली यू कैन यूज दैट कीवर्ड, ऐसा ना.
ओके, नाउ इस फ्लैग को टॉगल करने के लिए भी कुछ चाहिए अपने को। तो क्या बना सकते हैं हम, इसको भी रिमूव करते हैं यहाँ से। लेट्स से आपका एप्लीकेशन में एक बटन है, क्लिक, और यू कैन से टॉगल, एंड ऑन दैट क्लिकिंग बटन यू विल सेट योर फ्लैग टू द अपोजिट। जो भी उस टाइम पे है वो उसका अपोजिट हो जाएगा। ओके, एंड जब भी आपका फ्लैग की स्टेट चेंज होगी द होल एप्लीकेशन विल गेट री रेंडर्ड, ये सुनो। एंड उस टाइम पे यू कैन यूज दैट फ्लैग का फ्लैग। इफ फ्लैग इज ट्रू वी विल हैव नेवर, जैसे हम क्लिक करेंगे वो सेट टू फॉल्स हो जाएगा, उस टाइम पे वी शुड गेट हेड, है सुनो। इनिशियली वी आर ट्रू सो हैविंग नेवर, व्हेन वी क्लिक ऑन टॉगल वी शुड गेट हेड। इजी। ओके, फाइन। सो नाउ लेट्स मूव टू योर यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट का हम यूज ही क्यों करते हैं? ओके, लेट्स सी। तो suppose you are having a use effect here. Again, use effect is coming from where? React. So उसको भी हमें import करना पड़ेगा, करेक्ट? Either just import React और directly use करो react dot use effect, या फिर एक एक करके आपको करना है तो ये ऐसे कर सकते हो। इट इज़ अ नेमिंग थिंग, तो आप मल्टीपल भी एक साथ कर सकते हो, यूज स्टेट के साथ ही यूज इफेक्ट यूज कर सकते हो। तो दो लाइन एक की आपकी एक लाइन यहाँ पे सेव हो जाएगी। फाइन, क्योंकि ये दोनों सेम पैकेज से आ रहे हैं आपके रिएक्ट से। ओके, तो यहाँ पे हमने कंसोल किया है यूज इफेक्ट, एंड व्हाट डू वी कॉल दिस एरे? Dependency array, correct. What if we don't pass this dependency array? What will happen? The use effect would get called on every re-render. Correct. Whenever any state of your application would get updated with the app itself, this use effect will also get called. Okay. But if you pass the dependency array empty, now this use effect will only get called one time. Empty means it will be called at each re-render, बट अगर empty array आप डाल रहे हो तो it will render only one time. Okay, and if इसके अंदर कोई state डाल देते हो आप, सपोज flag, तो ये कब कब चलेगा? एक तो फर्स्ट टाइम चलेगा, करेक्ट, एंड it will update, it will be called when this flag updates. Easy. सो फर्स्टली आपको पता होना चाहिए कि ये स्टैक में कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। जब आपका एप्लीकेशन रेंडर होता है तो से आप यहाँ पे कंसोल कर रहे हो यूज इफेक्ट। ओके, सो इससे पहले हमने कंसोल किया सपोज 1, एंड इसके बाद कंसोल किया सपोज 2। सो इन माय कंसोल व्हाट विल बी देयर? इन माय कंसोल व्हाट विल बी देयर? 1 2 यूज इफेक्ट। ओके, लेट्स सी, लेट्स रिफ्रेश। 1 2 एंड यूज इफेक्ट। कैन यू सी ये दो बार रन कर रहे हैं हर बार ही हमारे पास? वाई टू टाइम्स दे आर रनिंग? अभी तो हम कोई स्टेट को अपडेट भी नहीं कर रहे हैं। इट माइट बी बिकॉज ऑफ दिस, वेर इट इज, स्ट्रिक्ट मोड। ओके, अगर मैं स्ट्रिक्ट मोड को यहाँ से हटा देता हूँ, लेट्स सी इन द आउटपुट नाउ, कैन यू सी कॉल्ड ओनली वन टाइम?
तो स्ट्रिक्ट मोड का काम क्या है बेसिकली, आपके एप्लीकेशन को वेरीफाई करना। ओके। सो आप जो जो डिपेंडेंसीज यूज कर रहे हो, जो जो फंक्शन यूज कर रहे हो, वो सबको एक बार रन करके देखा किसी में कोई इशू तो नहीं है। उसके बाद ही वो आपको रन करने की परमिशन देगा। दैट्स व्हाट द स्ट्रिक्ट मोड देयर इज। ओके। सो कंसोल में हमें कुछ परेशानी ना हो देखने में, दैट्स व्हाई वी रिमूव इट फ्रॉम देयर। फाइन। ठीक है। हाँ, इट विल गेट रिरेंडर ओनली व्हेन वी क्लिक ऑन दिस बटन। सो अभी देखते हैं यहाँ पे हम, व्हेन वी क्लिक दिस, तो फ्लैग की स्टेट चेंज होगी। सो हम इससे अगर डिपेंडेंसी हटा देते हैं तो इट विल गेट रिरेंडर्ड एवरी टाइम। सी, रिफ्रेश, if I click on it, it will get re-rendered, correct, each time. But if I use empty dependency array, तो वो एक ही बार कॉल होगा एंड टूगल करने पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ओनली वन टू इज कॉल्ड। गॉट इट। अगर कोई डिपेंडेंसी है उसके अंदर, वो डिपेंडेंसी जब अपडेट होगी तो ही वो चलेगा। फाइन। ओके। सो एक और चीज आती है अभी कि हम यूज इफेक्ट को यूज ही क्यों कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं बताओ। टू हैंडल द साइड इफेक्ट्स। व्हाट आर साइड इफेक्ट्स? ओके। तो सपोज देर इज सम फंक्शन इन योर कोड। फाइन। सो फंक्शन नॉट टॉगल एबीसी console डॉट लॉग एबीसी, और इसको हम कॉल कर रहे हैं यहाँ पे एबीसी को। व्हाट विल हैपन नाउ? एवरी टाइम द ऐप गेट री-रेंडर्ड, तो एबीसी कॉल होगा। सी, करेक्ट। नाउ आपको पता है ऐप, आपका ऐप री रेंडर कब होता है? जब कोई स्टेट अपडेट होती है। तो अगर मैं इस एबीसी के साथ स्टेट को भी अपडेट करने लग जाऊं, तो अभी क्या होगा अपने पास? इट विल गेट स्टक इन टू द लूप। देखो। सी, ये सुनो, इनफाइनाइट लूप में वो स्टक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने जितनी बार भी एबीसी को कॉल किया, वो सेट फ्लैग को चेंज कर रहा है, मतलब आपके फ्लैग की वैल्यू को चेंज कर रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? जब भी वो चेंज होगी आपका ऐप फिर से री रेंडर होगा, और जब भी वो री रेंडर होगा एबीसी फिर से कॉल होगा। कैसे ना? तो उस चीज से बचने के लिए वी यूज इफेक्ट, ताकि वो एक ही बार चले। करेक्ट। सपोज आपने एबीसी फंक्शन नाम बना लिया है एंड नाउ यू वांट टू यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट में हम क्या करेंगे, डिपेंडेंसी नहीं डाली सपोज हमने, और एबीसी को सिर्फ एक बार कॉल किया। फाइन। नाउ वो एक ही बार कॉल होगा। सी, वर्क्स। जैसे एक बार लोड हो जाता है आपका कंपोनेंट, तो वो यूज इफेक्ट के अंदर वापस नहीं जाएगा अभी कभी भी। नाउ आपका एबीसी का काम भी हो गया, और आपका वो लूप में भी नहीं स्टक हुआ। गॉट इट? व्हाई वी यूज इफेक्ट? ओके। नाउ आपके एप्लीकेशन में देर आर थ्री फेजेस। सो कौन कौन से थ्री फेज होते हैं वो? माउंटिंग, अपडेटिंग एंड अनमाउंटिंग। ये सुनो, माउंटिंग मीन्स जब वो फर्स्ट टाइम आपके डॉम पे रिफ्लेक्ट हुआ, करेक्ट, फर्स्ट टाइम आपके डॉम पे शो हुआ, दैट इज माउंटिंग। फाइन। अपडेटिंग मीन्स अगर आप उसी बेसिकली जो आपने कंपोनेंट माउंट किया है, उसी कंपोनेंट में अगर कुछ अपडेट करते हो, कोई स्टेट अपडेट कर दी, या फिर कोई यू कैन से बेस्ड ऑन कंडीशनल रेंडरिंग आपका
स्टाइलिंग अपडेट कर दी तो वो अपडेटिंग फेज में आता है। एंड व्हेन इट गॉट वैनिश फ्रॉम दैट डॉम वो अनमाउंटिंग स्टेट होता है। फाइन। ठीक है, अभी ये तीनों को समझते हैं वर्क कैसे करते हैं। सो लेट्स रिमूव ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, ये फ्लैग था अपने पास, टोगल कर रहे हैं और उससे हमारे पास वो चेंज होके आ रहा है। फाइन। इतना एप्लीकेशन सबको समझ में आता है अभी, नेविगेशन हेड एंड ऑल। या तो जैसे ही मैंने टूगल पे क्लिक किया नेविगेशन माउंट हुआ, टूगल पे क्लिक किया नेविगेशन अनमाउंट, हेड माउंट। फाइन। इतना क्लियर है सबको? ओके। सो लेट्स से आप हेड में हो एंड हेड में हेड तो रिटर्न कर ही रहा है विथ हेड। ओके, लेट इट बी देयर। यहाँ पे हम यूज इफेक्ट का यूज कर रहे हैं सपोज। ठीक है, नाउ यूज इफेक्ट में अनमाउंटिंग के लिए वी हैव अ रिटर्न फंक्शन एट द एंड। करेक्ट। जब भी ये हेड फंक्शन अनमाउंट होगा तो आपका वहां पे एक रिटर्न कॉल होगा। यस। तो हम कंसोल करते हैं अभी कि हेड माउंटेड। जब भी आपका हेड माउंट होगा तो ये कंसोल हो जाएगा, क्योंकि एक बार चलेगा ही चलेगा यूज इफेक्ट, ऐसा ना। बट जब वो अनमाउंट होने वाला होगा तो वी हैव अ रिटर्न फंक्शन, वो तभी वर्क करेगा तब आपका हेड जो है अनमाउंटेड होगा। करेक्ट। सो लेट्स सी नाउ, रिफ्रेश। इनिशियली नैव बार पे हेड माउंट नहीं हुआ, टोगल हेड माउंटेड। जैसे ही हम टोगल करेंगे हेड को अनमाउंट होना है अभी। वर्क्स। माउंटेड अनमाउंटेड, सेम गोज विद द नैव बार ऑल्सो। तो ओनली एट द टाइम ऑफ अनमाउंटिंग इट विल गेट कॉल्ड, what will get called this return function of the use effect. Got it? Fine. ठीक है, तो से मेजरली हम यूज इफेक्ट का यूज करते हैं कोई चीज को बेसिकली डाटा फैच करने के लिए एपीआई से, क्योंकि इट विल गेट सम साइड इफेक्ट। उससे पहले इफ यू वांट टू लर्न अबाउट व्हाट आर प्योर एंड इम्प्योर फंक्शन, पता है किसी को? व्हाट इज प्योर फंक्शन? ओके, आई गेस आपका पहले भी हुआ है ये। सम ए बी रिटर्न a plus b, so what can we call it? It's a pure and impure function. Pure function. Why? It is a pure function because it will return consistent output. Yes or no? Given that you are giving the same values of a and b, it will return the same output. Okay. If you are giving every time a as 5, b as 10, it will always return you 15. Nothing else. Correct. But suppose if I add some additional value, math dot random डाल दिया मैंने एक, now will it return you the same result every time? No, क्योंकि math dot random can give you any number. ऐसा ना? So we can call this a impure function. Similarly, if you are calling any API inside your function, that function is not pure, क्योंकि API have can have multiple results. Either you will get the data, you will not get the data. It depends on the third party thing. Got it? What are pure and impure function? So that impurity से बचने के लिए we use effect mainly. Okay. So let's say head के अंदर we are having some data जिसको हमें रिटर्न करना है यहाँ पे। सो उस डाटा की स्टेट बना लेते हैं, डाटा सेट डाटा एज एन एम्प्टी अरे। और डाटा हम कहाँ से लाएंगे? एपीआई से फेच करके।
So let me have some API. Request users. ओके, सपोज हम यहाँ से लेने वाले हैं. ओके, ठीक है. नाउ कैन यू सी हेयर वी आर हैविंग डाटा एंड व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पेजेस? 2. ओके, एंड दिस इज पेज नंबर 1. हमें पेज नंबर 2 पे जाना है तो क्या करेंगे? पेज 2. ऐसा सिंपल. तो इस एपीआई का हम यूज करने वाले हैं इन आर एप्लीकेशन. ठीक है, तो हमें डाटा चाहिए रहेगा, करंट पेज चाहिए रहेगा, उसके लिए स्टेट बना लेंगे इनिशियली 1. ठीक है, और एक टोटल पेजेस चाहिए रहेगा अपने को. ठीक है, इनिशियली 0 सेट सेट किया है. टिल नाउ एनी इश्यूज? यूज फैक्टर एंड ऑल यू विल सी. नो. ठीक है, तो इनिशियली वी कैन अज्यूम दैट वी आर हैविंग सम डाटा है. ओके, एंड उस डाटा को हम यहाँ पे मैप कर रहे हैं. तो डाटा में हमारे पास क्या है कि आईडी है, ईमेल है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है. ठीक है, हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को प्रिंट करने वाले हैं बस. ठीक है, तो डीबीजी के अंदर सपोज वी आर हैविंग अ यूएल. यूएल के अंदर हम डाटा को मैप कर देंगे. डाटा डॉट मैप लिस्ट इज दिस, और डी मीन्स दैट ऑब्जेक्ट डॉट. लेट्स मेक इट आवरसेल्व्स. ठीक है, यहाँ पे हम मैप कर लेंगे. दिस इज योर एलिमेंट, दिस इज योर इंडेक्स. इंडेक्स की हमें जरूरत नहीं है अभी, चलो की के लिए डाल देते हैं. एंड व्हाट वी वांट हियर इज योर एलिमेंट डॉट फर्स्ट नेम, ऐसा ही है कुछ. फर्स्ट नेम. फाइन, we will get all the elements here in the list. Depends upon what is the page number we are having. Okay, वो डाटा में हम सेट कर देंगे. Clear till now? Okay, now let's see what we will do in the use effect. तो use effect से हम उस API को कॉल करने वाले हैं. You want to make use of fetch or Axios? Axios, okay. So Axios को पहले हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा. So let me open one more. अपने एप्लीकेशन में आके npm i axios cd demo npm i axios. Installed. Application is also running. ठीक है, उसको यूज करने से पहले you have to import it. Import axios from axios. ओके, ये ढूंढ लेगा अपने नॉन मॉड्यूल्स में कि axios किधर है. फाइन. नाउ here you want to get the data. So axios dot get. अब यहाँ पे हम URL डालेंगे. URL is this request in API and the page. Initially what will get rendered? Page number 1, क्योंकि हमने सेट किया उसको. और यहाँ पे डिपेंडेंसी डालेंगे हम पेज की. जैसे ही पेज अपडेट होता है वी शुड गेट द आउटपुट. इजी. इंपोर्ट यूज स्टेट ऑल्सो. ओके, यूज स्टेट को इंपोर्ट करना पड़ेगा. फाइन. ठीक है, यहाँ से हमारे पास डाटा आ गया. आफ्टरवर्ड्स हम क्या करेंगे? डॉट देन वी विल गेट द डाटा एंड सेट डाटा कर देंगे. फाइन. एंड वी शुड ऑल्सो गेट द टोटल पेजेस ऑल्सो, क्योंकि वो भी हमारे पास डाटा में है. करेक्ट, उसको भी सेट कर देंगे. सेट टोटल पेजेस इक्वल टू रेस्ट डॉट डाटा डॉट टोटल पेजेस. टिल नाउ क्लियर? हमारे पास टोटल पेज भी आ गए और डाटा भी आ गया.
फाइन. सो फर्स्ट टाइम वो कॉल हो ही जाएगा, तो वी शुड बी हैविंग डाटा इन आवर एप्लीकेशन. लेट्स सी. हेयर इज आवर एप्लीकेशन. वी वर इन द हेड में उसको बनाया है, तो वी शुड टॉगल दिस हेड. व्हाट इन द डाटा. यस, टॉगल अनमाउंट, टॉगल माउंट. हेड पे. इजी. ओके. नाउ वी वांट द पेजिनेशन आल्सो. सो पेजिनेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, दो बटन बना सकते हैं इस लिस्ट के नीचे, यूएल के नीचे. लेट्स से बटन. बटन का नाम रखते हैं प्रीवियस. स्पेलिंग सही है. ओके. एंड बटन का नाम नेक्स्ट. तो ये दो बटन बन गए हमारे पास. इस बटन से हमें क्या करना है अभी, पेजेस को इंक्रीज और डिक्रीज करना है, ये वाला पेज को. ये सुनो. सो ऑन प्रीवियस, ऑन क्लिक पे क्या होना चाहिए, सेट पेजेस टू पेज -1. एंड हेयर सेट पेज टू पेज +1. करेक्ट. तो जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अभी, तो सेट पेज क्या हो जाएगा, पेज +1. और जैसे ही पेज अपडेट होगा तो यूज इफेक्ट दोबारा कॉल होगा, क्योंकि पेज के अंदर है, पेज इसकी डिपेंडेंसी है. तो जैसे ही ये दोबारा कॉल होगा, तो जो करंट पेज होगा उसका डाटा आ जाएगा अपने पास, सेट डाटा में कॉल हो जाएगा, और टोटल पेज हो जाएंगे. तो ये दोबारा अपने पास रेंडर चलते चलते वी विल हैव द डाटा. नाउ लेट्स सी. इफ आई क्लिक नेक्स्ट, आई एम हैविंग द डाटा. करेक्ट. क्लिक प्रीवियस, हैविंग द डाटा. यस नो. नाउ इफ आई क्लिक नेक्स्ट 2 टाइम्स, तो क्या होगा, तो मैं आपको वहां पे दिखाता हूँ. ये तो हम करेंगे ही. से console डॉट लॉग, नॉट console, पहले सेट करेंगे, सेट पेज इक्वल टू पेज -1. और यहाँ से console करेंगे पेज को. सेम चीज़ हम नीचे करेंगे, सेट पेज +1 एंड console. फाइन. तो इनिशियली आप देखोगे तो वी हैव हैविंग द डाटा इन द हेड. नेक्स्ट पे क्लिक किया. यार वो इशू ये है कि ये करंटली 2 है पेज की स्टेट, अगर आप देखोगे यहाँ पे कंपोनेंट्स, क्योंकि वो कॉल बैक है तो वहाँ पे रिटर्न नहीं कर रहा है वो. हेड सी, पेज 2. ओके. हम्म. ठीक है, बट एक बार इमेजिन कर लो कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेजेस 2 हैं. तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ दोबारा, तो वी आर नॉट हैविंग एनी डाटा इन द पेज 3 4 5. करेक्ट. व्हेन वी गो बैक, सी हम 2 पे आए तो हमारे पास डाटा है, 1 पे आए तो डाटा है, 1 के नीचे जाएंगे तो हमारे पास डाटा नहीं है. करेक्ट. वो 1 वाला डाटा ही शो कर रहा था अपने को. समझ रहे हो, व्हाट इज द इशू. सो वी डो नॉट वांट दिस बिहेवियर नाउ. तो जैसे ही मैं पेज नंबर 1 पे होता हूँ, तो मेरे को इस प्रीवियस को डिसेबल करना है. ओके. तो हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा बटन था प्रीवियस वाला, इसमें एक एट्रीब्यूट लगा देंगे कि डिसेबल्ड इक्वल टू पेज इक्वल टू 1. अगर पेज नंबर 1 है तो डिसेबल्ड ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज नहीं. और नीचे क्या लगा देंगे डिसेबल्ड एट्रीब्यूट में, अगर पेज इक्वल टू टोटल पेजेस है, विच मीन्स लास्ट पेज पे आ गया, तो वो डिसेबल हो जाएगा. वर्क्स. रिफ्रेश. गूगल. सी प्रीवियस इज ऑलरेडी डिसेबल्ड क्योंकि हम पेज नंबर 1 पे हैं. नेक्स्ट, पेज नंबर 2. करेक्ट. सो जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई एम हैविंग अ कॉल.
Okay, so guys, still now any issues? Why it is showing page limit only 5? Where it is showing? Where it is showing page limit? गाइस स्टिल नाउ क्लियर? हेड पे जाएंगे तो वो अनमाउंट हो जाएगा, करेक्ट? दोबारा आएंगे तो वो इनिशियली स्टार्ट होगा फर्स्ट पेज से। वो प्रीवियस स्टेट उसके पास नहीं रहेगी अनमाउंट के बाद। ओके। ओके, बाय डिफॉल्ट इट इज हैविंग पेज लिमिट, क्योंकि हम यूज इफेक्ट में फर्स्ट टाइम वो रन हो रहा है, करेक्ट? वो वहां से डाटा लाके सेट कर देगा, वो तो चेंज नहीं होगा ना बार बार। इज देयर एनी एट्रीब्यूट टू मेक द बटन वैनिश? तो हम क्या कर सकते हैं? स्टाइल कैसे कर सकते हैं इसको यार? स्टाइल, स्टाइल के अंदर व्हाट वी कैन हैव डिस्प्ले, इफ पेज नंबर इक्वल टू 1 डिस्प्ले, अदरवाइज ब्लॉक। सी, डन। सेम आप कर सकते हो नीचे, इस डिस्प्ले इक्वल टोटल पेजेस नन अदरवाइज ब्लॉक। अभी हमारे पास सिर्फ नेक्स्ट है, क्लिक। अभी नेक्स्ट ये बचा ही नहीं है, प्रीवियस बचेगा। ओके, तो ये सब चीज़ें यू कैन अडेप्ट। एवरीथिंग फाइन गाइस टिल नाउ? ओके, नाउ वी विल हैव सम एक्टिविटी। ओके, सो इन द चैट आई विल बी शेयरिंग एन एप्लीकेशन जिप फाइल। वो प्लीज़ एक बार आप अपने अपने पीसी में एक्सट्रैक्ट करके रख लो। जस्ट होल्ड ऑन। फाइल, गाइस आई हैव सेंड द फाइल इन द चैट। ओके, रिसीव्ड। एक बार इसको डाउनलोड कर लो एंड एक्सट्रैक्ट करके ओपन इट इन वीएस कोड्स। फाइल रिसीव्ड ने सब लोगों को? Let me also open that file. Just hold on. Guys, are you there? Received the file? एक्सट्रैक्ट कर लिया सबने? VS कोड में ओपन किया? सी, नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है सब लोगों को? अपना XYZ को ओपन करो टर्मिनल में। डन। एंड हेयर पैकेट जो जेसन इज ऑलरेडी प्रेजेंट, यू जस्ट नीड टू यूज npm i। सारे इंस्टॉल कर लो। Should I send you the file again? I've shared it. Whoever is not gotten, please.
आफ्टर ओपनिंग इट प्लीज यूज npmi. ज्योति प्लीज पहले आप फोल्डर में जाओ. ठीक है, जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा यू कैन सी हेयर, आप उसको स्टार्ट कर सकते हो npm स्टार्ट से. आपके पास एक बॉडी गिवन है, सी. ओके, सो इट शुड बी टू डूज नॉट पोस्ट. ये अपना सही कर लो. टू डूज पेज एंड ऑल, वो शायद सही है. लेट मी चेक इन द ब्राउजर. इज माय ब्राउजर विजिबल? लेट मी चेक. ठीक है, इट इज वर्किंग. पेज नंबर 1, पेज नंबर 2. ठीक है, इट इज वर्किंग. ठीक है, तो यहाँ पे पोस्ट की जगह टू डूज कर लो. आफ्टरवर्ड्स आपको क्या करना है, अपना जो भी आपको इसमें यूज इफेक्ट के स्टेट्स लगेंगे वो आप ले सकते हो. पेजेस, टोटल पेजेस. ओके, टोटल पेजेस तो है नहीं आपके पास, तो आप उसमें टोटल पेजेस की लिमिट लगा सकते हो 10 तक. ओके, अपने आप ही डिक्लेयर कर लो टोटल पेजेस 10. फाइन. देन आपको क्या करना है, यूज इफेक्ट से फेच करना है और आपको डिस्प्ले करनी है सारी चीज़ें इधर. और जैसे हमने बटन बनाए थे वैसे आपको यहाँ पे बटन बनाने हैं. ठीक है. देन आपका जो ये टू डू है इसको अपने ऐप डॉट जेएस में इंपोर्ट करके यहाँ पे कॉल करना है. इजी. ओके, जिसको नहीं मिला है आई एल सेंडिंग इट अगेन. Now what I'll be doing, I'll be making the group of 4 4 or 5 5 people in a breakout rooms, and you guys will be solving it together. कोई भी एक बंदा शेयर कर लो स्क्रीन और बाकी लोग उसकी हेल्प कर सकते हो. ओके, so let me create the rooms. Okay, after 50 minutes I will be basically closing those rooms. और आप लोगों को जो जो इश्यूज आए या फिर आपसे कैसे के सॉल्व हुआ या चैलेंजेस आए वो आप मेरे को बता सकते हो बाद में. ओके, आई एम ओपनिंग द रूम्स. यू गाइस कैन बी देयर. Please join your rooms and help each other. Guys, please join your rooms.
Okay. Santosh, Shahrukh, Shivam, please join your breakout rooms, please. Ankush, Sonal, Abdul, are you guys here? Ankush, Shivam, Shahrukh, are you guys here?
शिवम, शाहरुख, आर यू guys here? Yes, yes. बस इसी तरह है, घूमने के लिए रहो। एंड हो गया। Okay, they're नहीं, they are doing it. Breakout rooms में है लोग। अच्छा अच्छा, अभी खत्म नहीं हुआ है? नहीं, अभी 8:50 को मैंने दिया इनको। अच्छा, लेट हो गया। हाँ, समरी में लेट हो गया। कोई दिक्कत नहीं करनी, तो पहली बार है इम्प्लीमेंटेशन, नेक्स्ट टाइम से हाँ। फिर वो प्रॉब्लम हो रहा था वो इंस्टॉलेशन का बहुत लोग को। किसी ने रेज किया था? इंस्टॉलेशन ऑफ CRA। हाँ, सीआरए। नहीं, रेज नहीं किया किसी ने यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, कंटिन्यू, बस हम देख हाँ। लिंक चला रहे थे, आ गया था। हाँ ठीक। ठीक। अच्छा, डन। यस सर। किसके ग्रुप में थे आप? रूम नंबर? वन में था सर, लेकिन मैंने अपना इंडिविजुअल कर लिया। नहीं, एक बार उनकी भी हेल्प कर दो जाके यार। वो करण कर रहा है उसके यार। नहीं, नो इश्यूज, एक बार देख लो वहाँ पे क्या हो गया। वो इफ़ यू सर वांट टू कुछ। हेल्प समवन, मैं आपको रूम नंबर 5 में चले जाओ आप, ओके? उनकी हेल्प करता हूँ। ओके सर। शाहरुख, शिवम, I'm asking you last time. Are you here?
सर एक्सियो से इंपोर्ट करने के लिए मैं एनपीएम में एक्सियो से लिख रही हूँ तो वो इंपोर्ट नहीं हो पा रहा। PMI Axios एनपीएम आई तो पहले ही कर लिया था तब भी नहीं हुआ। NPM I Axios एनपीएम आई एक्सियोसी की। अच्छा एनपीएम आई एक्सियोस। ओके सर मैं करती हूँ। हाँ विशाल डन No, sir. We have problem. ज्योति के साथ थे क्या आप? Yes, sir. हम्म सर अभी ठीक है इशू बता रहे इंपोर्ट में जो बॉडी से इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें हाँ दूसरी फाइल में। एक 9-10 पे मैं ब्रेकआउट रूम्स बंद कर दूंगा आफ्टरवर्ड्स यू कैन शेयर योर स्क्रीन ओके सर। ओके डन गाइस सर मैं स्क्रीन शेयर करूँ। वन सेक ओके हाउ मेनी ऑफ यू डन गाइस किस किस का हुआ यू कैन रेज योर हैंड्स ओके उत्तम has done Ashita has done others H नहीं हुआ ओके एक्सियोस में इशू है ऑन ऑल ठीक है ज्योति का ठीक है यू गाइस कैन लोड ऑन योर हैंड्स वेल डन गाइस ज्योति यू कैन शेयर योर स्क्रीन ओके सर। ज्योति का इशू इज कि शी इज नॉट एबल टू इंपोर्ट द एक्सियोस सर इंपोर्ट करने के बाद भी मतलब ये पता नहीं इशू दिखा रहे हैं। शो मी इन द कोड ओके अच्छा टू डू का इशू इंपोर्ट एक्सपोर्ट किधर क्या दिखाओ सर एक्सपोर्ट इसमें लाइन नंबर 35 पे। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट टू डू इंपोर्ट किधर कर रहे हो इंपोर्ट ऐप डॉट जेएस में कर रही सर। ये गया। टू डू मैं अगर ऐसे भी गाइस व्हाट करूँ इज द इशू हियर किसी को इशू है भी नहीं आ ऐसा रहा।
पर एक तो ये लोगो वाला जो इंपोर्ट हो रहा है ना वो हटेगा वहां से, वो इसलिए एरर दिखा रहा है, एक एरर तो उसका है। लोगो इज फाइन। वो लोगो वाला ऊपर वाला, इसकी वजह से एरर दिखा रहा था। ठीक, स्टिल हैविंग इश्यूज हियर, इंपोर्ट टू डू बॉडी से। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हो, इसका नाम बॉडी रख सकते हो। app.js में जस्ट इंपोर्ट बॉडी, मे बी नेमिंग का इशू है उधर, ऐप कंपोनेंट का नाम अलग है और एक्सपोर्ट लाइन कुछ नंबर और है। 10 पे भी मैं लिख देती हूँ फिर। हम्म, नहीं सर, अभी भी नहीं हुआ। इशू क्या है? सेम इशू सर, पहले टू डू था, बॉडी था। अरे सबको इशू आ सर रहा है क्या ये मुझे वाला? लगता है प्रॉब्लम है, स्ट्रिंग लिटरल इन्होंने यूज किया है, शायद से उससे भी हो सकता है। हाँ सर, ये हो गया। हाँ, स्ट्रिंग लिटरल में इशू था फिर। टू डू डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन। हाँ, वो टू डू में आपका इशू है अभी। सर इसे डेटा कैसे नहीं तो आएगा, इसमें मैंने डिस्प्ले भी कराया है, डिस्प्ले नहीं हो रहा डॉट डेटा में, इसमें आपको भी। पहले चेक करना पड़ेगा रेस्टोर डेटा में क्या है। ओके, ओके सर। ठीक है सर, मैं ट्राई करती हूँ। ठीक है, हर्षित का हो गया, और किसका हुआ था? अवेट रह गया। ओके, हर्षित कैन यू शेयर योर स्क्रीन? हर्षित इज हियर। यस सर। हाँ, शेयर करके एक बार एक्सप्लेन कर दो इनको। दिखाई दे रहा सर? यस विजिबल। यस सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई यूज अ फंक्शन, मैंने रेंडर डेटा नाम दिया है, इस पे एसिंक अवेट मैंने यूज किया है एंड इसके अंदर ट्राई कैच ब्लॉक यूज किया है, और मैंने एक्सेस का यूज नहीं किया, मैंने डायरेक्ट फैच का यूज किया है। तो यहाँ पे मैंने इसको यूआरएल को कॉपी किया है, क्योंकि पेजिनेशन मेरे को डायनामिक चाहिए, तो यहाँ पे मैंने एक यूज क्रिएट किया है, पेज और सेट पेज। यहाँ पे यूज स्टेट मैंने इसको 1 दिया है पहले एट द इनिशियल पॉइंट पे, फिर मैंने यहाँ पे पेज को यहाँ पे ऐड कर दिया है। उसके बाद यूज इफेक्ट बनाया मेरे को मैंने, और इसको फंक्शन को इसमें कॉल कर दिया, क्योंकि वो विदाउट यूज इफेक्ट ये अगेन एंड अगेन रीरेंडर होगा। एंड यहाँ पे मैंने डिपेंडेंसी एरे में पेज दिया है, क्योंकि जब भी मैं पेज को चेंज करूंगा तो ये दोबारा से रेंडर होगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने मैप का यूज किया डेटा एक्सेस करने के लिए, और यहाँ पे एक की दी है फॉर अ यूनिक एलिमेंट। एंड देन मैंने बटन, 2 बटन दिए थे, उसमें मैंने ऑन क्लिक इवेंट यूज किया है, और पहले में मैंने पेज को माइनस किया है, दूसरे में मैंने पेज को प्लस किया है। और डिसेबल का यूज किया है यहाँ पे, जब पेज 1 पे आएगा तो ये प्रीव्यू वाला बटन जो है वो डिसेबल हो जाएगा, एंड पेज जब 2 पे आएगा लिमिट मैक्स हो जाएगी तो ये नेक्स्ट वाला डिसेबल हो जाएगा। ओके, बट द पेजेस यू आर हैविंग देयर इज 20 पेजेस और 10 पेजेस? यस, 10 डिवाइडेड बाई 2 किया है सर, लिमिट 10 की थी। नहीं, लिमिट 10 इज पर पेज 10 एलिमेंट दिखेंगे आपको यस ऐसे, सर। बट पेजेस आर मोर देन 10। आई थिंक 200 है सर, मैंने वो देखा नहीं। हाँ, 200 है, करेक्ट। यस सर। सो मैंने वो ठीक ध्यान है, नहीं दिया। ठीक है, एक बार हम कर लेते हैं, ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी आप लोगों को। सो सी, VS Code विजिबल, क्रोम विजिबल। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे पेज 20 तक वो जा रहा है, और आपने पोस्ट यूज़ किया है, इट इज़ टू डूज है ना, मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपको। पेज 20 है, पेज लेट्स से 21 इज देयर और नॉट, विल सी। नहीं, 21 से लेके 20 तक पेजेस है। फाइन। सो यहाँ पे हमें क्या करना था कि आपका पहले तो बॉडी डॉट JSX को कंप्लीट करते हैं। टू डू है अपने पास, जिस एन एरे, एंड एक पेजेस का लग गया, पेजेस का। सेकंड इज टोटल पेजेस, हमें पता है टोटल पेज कितने हैं, 20, वी कैन सेट इट हेयर ओनली।
सिंपल। नेक्स्ट इज यूज इफेक्ट से आप डाटा लाओगे, डाटा विद द हेल्प ऑफ एक्सियोस। तो एक्सियोस को मुझे यहाँ पे भी डालना पड़ेगा। लेट्स गिव मी अ सेक। एक्सियोस। Okay. So here, with the help of Axios, I'll get the data. Axios.get this page is there, limit 10, then res, then set to dos में डाल देंगे, सिंपल। एंड यहाँ पे पेजेस के थ्रू पेजिनेट करेंगे। टिल नाउ एनी इश्यूज? नॉट पेजेस, पेज। फाइन, ठीक है। और यहाँ पे हमें डाटा रेंडर कराना है। लिस्ट के लिए वी विल यूज यूएल एंड हेयर टू डूज डॉट मैप एलिमेंट, एंड हमें सिर्फ टाइटल डालना था, सिंपल। अलाइन में टाइटल आ जाएंगे। बटन के लिए आप ऑन क्लिक लगा सकते हो, सेम। डिसेबल डाल दोगे, ठीक है। एंड डिसेबल्ड इफ पेज नंबर इज टोटल पेजेस विच इज 20, मैनुअली भी कर सकते हो। एंड देन ऑन क्लिक, ऑन क्लिक पे सेट पेजेस टू -1 एंड हेयर ऑन क्लिक पे सेट पेजेस टू +1। इजी टिल नाउ? बॉडी बन गई? ज्योति एनी इश्यूज? नहीं सर, आ हाँ, गया है। ठीक है। पेजेस, टोटल पेजेस और टू डू को एक्सपोर्ट भी कर दिया है। एंड लेट्स इंपोर्ट इट हियर। इंपोर्ट नॉट बॉडी टू डू फ्रॉम बॉडी, और यहाँ पे उसको कॉल कर देंगे टू डू को। फाइन, लेट्स स्टार्ट दिस एप्लीकेशन। टू डू लिस्ट वी आर गेटिंग। नेक्स्ट, नेक्स्ट। ओके, जैसे हम पेज नंबर 20 पे जाएंगे, इट विल गेट डिसेबल्ड। वर्क्स? इजी वन, ठीक है। ऐप में बस हमने इंपोर्ट किया है और उसको कॉल किया कंपोनेंट को। यहाँ पे हम, ये आपके 3 लेयर टोटल पेजेस एंड ऑल। अगर आप चाहो तो इसको ना लेके, क्योंकि स्टेट की जरूरत है नहीं, इट इज़ अ कांस्टेंट, आप डायरेक्टली यहाँ पे डिसेबल्ड में यूज़ कर रहे हैं खाली उसको। डिसेबल्ड व्हेन पेज इज इक्वल टू 20, ये भी कर सकते हो, सेम। फाइन, क्लियर? ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन ऑल्सो, क्योंकि आई गेस उससे ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी, है ना, असाइनमेंट्स करने में। Okay, that's it from my side. If you guys are having any issues, you can tell me now. Otherwise, you are free to leave. Nice. Some people are saying today they have got most of the content. Okay, glad to hear that. Take it, guys. You can drop off if you are not having doubts. Otherwise, you can ask. लेक्चर की रिकॉर्डिंग इट विल बी ऑटोमेटिक, आपके LMS पे मिल जाएगी आपको। Was this kind of session helpful? Where breakout room में you guys can discuss among yourselves. सर आई Yes. हैव वन डाउट। हाँ, स्क्रीन शेयर करो।
हाँ स्क्रीन शेयर कर लो। सर ये एग्जिस्ट वाला असाइनमेंट था, हम्म। उसमें सब ऐड हो रहा है, लेकिन जब भी मतलब मैं ऐड करके तो ये रिफ्रेश हो जा रहा है पेज, मतलब, और मैंने यहाँ पे प्रिवेंट डिफॉल्ट भी यूज़ किया, फिर भी वो रिफ्रेश हो जा रहा है। यार वो एक्सीओस के साथ इशू आएगा, क्योंकि जैसे ही वो पोस्ट रिक्वेस्ट डालता है ना, तो हम्म। पेज वो उससे इशू नहीं होता, वो रिक्वेस्ट से ही वो रीलोड होता है। तो अगर आप अच्छा। सीडीएन, यहाँ पे आप सीडीएन का यूज़ कर रहे हो, करेक्ट? हम्म। अगर आप क्रिएट रिएक्ट ऐप में एक्सियोस का यूज़ करोगे तो इट विल नॉट गेट रीलोडेड। सीडीएन की वजह से हो रहा है वो। ओके। ओके, थैंक यू सर। हाँ, चलो बाय गाइस, गुड नाइट।